Praise the name of the Lord. Blessed be the name of God of Israel. Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Lord, we bless your name. Lord, we praise your name. We give you glory, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we bless you, we praise you, Lord, we magnify you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, King of all kings. Praise the Lord, Amarjeet Kaur ji. Praise the Lord, Devinder Kular. Shalom, shalom. To Angela Droch. Hallelujah. Everyone that is logging on. सबको जय मसीह की. जसवंत सिंह जी जय मसीह की. मनीषा सिंघी जी जय मसीह की. हरदीप सिंह जय यीशु मसीह की. रूबी संघेरा जी जय मसीह की. Hallelujah. We bless your name, Lord Jesus. We magnify you, we praise you. Hallelujah. Brother Lalit jai masihi ki. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, King of glory. We bless you. Hallelujah. Thank you, Jesus. कल से फास्टिंग शुरू हो जाएंगी. हालेलुया. आप जो जो उपवास रख सकते हैं, प्लीज़ ज्वाइन मी. हालेलुया. And it is going to be a wonderful time of seeing the glory of the Lord, sitting at his feet and drinking from the river of the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Father. We bless your name. Father, we glorify you. We magnify you, Father, in the mighty name of Jesus of Nazareth. Father, we pray that your presence will descend upon us. Your presence will be upon this telecast, Father. That they won't be my word, but they will be your oracles, Lord. That you would do the talking with your people. That your word will come like hammer. That your word will come like fire. That your word will come like wind, mighty rushing wind, to transform the lives of your people, to draw your people closer to you. Hallelujah. Thank you, Lord. ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गलवा मूजी पे तू दिलाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा, हाथ अपने उठाए आते हैं, पाक रूह हम यस्सु के प्यासे हैं. Lord, we thirst for you. We yearn for you. We long for you, Lord. Our souls are desperate for you. We seek you more than we seek the air that we breathe. Lord, as the deer panteth for the streams of water, so does my heart pant after thee, O Lord God. Hallelujah. May your presence flood our hearts. May your holy presence fill us this afternoon. Hallelujah. We give you glory. Yahushua HaMashiach. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Hallelujah. King of all kings, we bless your name. तेरे नाम की हम हमद करते हैं और तेरे नाम की मदद सराई करते हैं. तेरे नाम की स्तुति करते हैं. तेरे नाम को महिमा देते हैं. Lord, open up your word, Lord, and speak to our hearts. Hallelujah. तेरा नाम महिमा पाए खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में. आमीन. आज जैसा कि आपने फेसबुक पे पोस्ट देखा होगा, it's about menorah that we are going to explore even deeper. मैंने मनोरा, जिसे हम 7 कैंडल स्टिक कहते हैं हिंदी में, उसके ऊपर 2-3 घंटे की बहुत अद्भुत शिक्षा पहले है.
मंथ ऑफ अप्रैल या मई में, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। दिस इज़ मनोरा, द 7 लैम्प्स बर्न हेयर, द 7 लाइट्स। इसे 7 कैंडल स्टिक, दीपट भी बोलते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ, पढ़िए मेरे साथ। एक्सोडस, जिसे हम निर्गमन कहते हैं और कूच की किताब कहते हैं पंजाबी में, निर्गमन उसका 37 चैप्टर, उसके 17 वचन से सुनिए क्या लिखा है यहाँ पे। एंड ही मेड द कैंडल स्टिक ऑफ प्योर गोल्ड ऑफ बीटन वर्क मेड ही कैंडल स्टिक, हिज शाफ्ट, हिज ब्रांचेस, हिज bowls, his knobs and his flowers were of the same. 6 branches going out of sides thereof, 3 branches of the candlestick out of one side thereof, and 3 branches of the candlestick out of the other side thereof. 3 bowls made after the fashion of the almond in one branch, a knob and a flower, and 3 bowls made with the almonds in the other branch, a knob and a flower, so that the 6 branches going out of the candlestick. अब ध्यान से सुने, आप अपनी पंजाबी या हिंदी की बाइबल में पढ़िएगा इन्हें। ये देखिए, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का दास क्या कह रहा है। ये 3 ब्रांचेज इधर हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 ब्रांचेस, 3 शाखाएं एक तरफ, 3 शाखाएं एक तरफ। और ये जो इसके ऊपर है ना, ये कैप, ये एक्चुअली एलमंड की शेप का है, बादाम की शक्ल का। और यहाँ पे नॉब्स और फ्लावर्स बने हुए हैं, और इनकी अगर सबकी गिनती की जाए, ये सब जो बने हुए हैं इनकी अगर गिनती की जाए तो ये 66 हैं। हालेलुया। 66 का मतलब ये 27 इस तरफ हैं और 39 4 के इस तरफ हैं। 66 हैं ये बाइबल की 66 पुस्तकें, 39 पुस्तकें पुराने नियम की और 27 पुस्तकें नए नियम की। तो ये ऊपर एलमंड बना है, बादाम की शक्ल। आपको मालूम इंसान की जो ये आँख होती है, ऐसे इस ध्यान से देखा जाए, ये बादाम की शेप की होती है, एलमंड की शेप की। तो इस पे एलमंड के फ्लावर हैं, बादाम की नॉब है और बादाम के फूल भी बने हुए हैं, जो मैंने बताया आपको 66 काउंटिंग में बनते हैं। और ऊपर ये बादाम की शेप की बोल्स हैं, कटोरियां हैं 7। हालेलुया। इनके अंदर 7 रोशनियां जलती हैं। और मैं 1-2 वचन आपके लिए पढ़ देता हूँ। 19 वचन पढ़ लें इसका, 19 पढ़ लिया हमने, अब पढ़ेंगे इसका 20। एंड द कैंडल स्टिक वर 4 balls मेड लाइक एलमंड, his knob and flowers, and a knob under 2 branches of the same, a knob under 2 branches of the same, knob under 2 branches of the same, according to 6 branches going out of it, and the knobs thereof, their branches were of the same, all it was a beaten work of pure gold. सोने को पिघलाया गया और सोने को कूटा गया। सोने का एक ही पीस है ये, इसके अंदर जोड़ नहीं है कोई। सोने के एक पीस की कुशल कारागिरी है, और ये कारागिरी के लिए परमेश्वर ने बुद्धि, जो मूसा के ऊपर रूह डाला, उसमें से रूह निकाल के यहोवा ने जो गोल्ड का काम करेंगे उनके ऊपर डाला, जो ब्रास का काम करेंगे उनके ऊपर यहोवा ने रूह डाला, जो लकड़ी का काम करेंगे उनके ऊपर खुदावन ने रूह डाला, जो लेदर का काम करेंगे, जो ज्यूल्स, जेम्स, डायडम का काम करेंगे, जो एम्ब्रॉयडरी का काम करेंगे, सबके ऊपर यहोवा ने उस रूह में से लेके डाला जो मूसा को दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस अगुए को परमेश्वर चुनता है, उस अगुए के अभिषेक में से आपको देता है। बहुत सारे लोग रिबेल करते हैं, रिबेलियस हो जाते हैं परमेश्वर के मुकर्रर किए अगुओं के विरोध में। ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उस अगुए को जो अभिषेक डाला था उसमें से निकाल के आपको बांटा गया है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर के सच्चे दास हों, परमेश्वर के अभिषिक्त हों, जो परमेश्वर के भय के रूह में चलते हों, उनके अधीन रहना चाहिए, अगर वो यहोवा के अधीन है। समझ रहे मेरी बात आप? तो इसका 23 वचन भी आपके लिए पढ़ता हूँ, एक 23। एंड ही मेड हिज 7 लैम्प्स एंड हिज स्नफर्स
एंड स्नफ डिशेस ऑफ प्योर गोल्ड। इसको, इस मनोरा को कैसे साफ़ किया जाए, इसकी बत्ती विक्स को कैसे साफ़ किया जाए, कैसे तेल इनके अंदर भरा जाए, ये पूरी टेक्नोलॉजी थी जो यहोवा परमेश्वर ने दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मनोरा है, इसे मनोरा बोलते हैं, लुकना बोलते हैं ग्रीक में। ये जो मनोरा है, ये इसराइली लोगों के लिए जीवन के वृक्ष का सिंबल है। दे कॉल इट द ट्री ऑफ लाइफ। जीवन का वृक्ष है ये, और ये जीवन के वृक्ष की शाखाएं हैं। दे वुड कॉल इट एज अ सिंबल ऑफ ट्री ऑफ लाइफ। और दूसरी चीज़ इसे किससे रिलेट करते हैं जूइश लोग? बर्निंग बुश, वो झाड़ी जिसे आग लगी थी, और जलाली परमेश्वर आग में से मूसा से बातें कर रहा था। हालेलुया। बहुत सारे जूइश स्कॉलर मानते हैं वो जो बर्निंग बुश थी वो अकासिया लकड़ी थी। अकासिया, मैंने आपको बताया जिस दिन मैंने क्रॉस के ऊपर एक बहुत डीप टीचिंग की थी कि क्रूस जैतून की लकड़ी का बना था, लेकिन उसकी साइड में 2 पीसेस लगे हुए थे अकासिया वुड के। परमेश्वर ने मूसा को जो टैबरनेकल बनाने के लिए कहा, और जो सुलेमान ने टैबरनेकल बनाया, मंदिर बनाया, उसके अंदर सारा काम अकासिया लकड़ी का था। जितने हैकल के अंदर पवित्र चीज़ें थीं, जैसे ऐद का संदूक, उसके अंदर अकासिया लकड़ी है, ऊपर सोना लगा हुआ है। हालेलुया। तो क्रॉस के अंदर भी अकासिया लकड़ी थी जैतून के साथ, और मैंने आपको बताया वो कैसे थी। आर्क ऑफ द कवनेंट इसकी बनाई गई थी, और इसके ऊपर 7 ज्योतियाँ जल रही हैं। 7 जो है, 7 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, 7 इज़ अ नंबर ऑफ परफेक्शन। हालेलुया। आपको मालूम इज़राइल जो नाम है, यशरेल, उसे हिब्रू में बोलते हैं यशरेल। योड शिन रेश अलफ लामिड, योड शिन रेश अलफ लामिड। हालेलुया। अगर आप इज़राइल लिखेंगे तो ये 7 लेटर्स बनते हैं, YISRAEL, इज़राइल। और अगर आप यरूशलेम लिखेंगे तो ये 9 लेटर बनते हैं। हनुका का जो ये था, फिर किसी समय हनुका की बात करेंगे हम। इसके अंदर 7 दीपट हैं, चिराग हैं, उसके अंदर 9 चिराग थे हनुका के। उसकी एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। ये जो ऐद का संदूक था, ये 100 पाउंड गोल्ड का, 100 पाउंड गोल्ड का, लगभग आधा किलो से थोड़ा कम होता है पाउंड में, 100 पाउंड गोल्ड का बनाया गया। और इसे ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया कि इसकी जो बैलेंसिंग है वो सुपर नेचुरल थी। कैसे ये बैलेंस होके रहेगा, और आप पढ़ सकते हैं लिविटिकस में, एक्सोडस में, इसके विषय में और जानकारी, बहुत डीप जानकारी है कैसे ये बनाया गया। इसके ऊपर आज बहुत गहरी बातें हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सीखेंगे। मैंने आपको एक दिन टीचिंग दी थी जेनेसिस 1:1 पे, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के 1 वचन पे। अगर आपको याद हो, जेनेसिस 1:1, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के 1 वचन में सारा विज्ञान छिपा हुआ है। पूरे यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा हुआ है। उसके अंदर साइंस है, टेक्नोलॉजी है, क्वांटम फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और जो कुछ विज्ञान की ब्रांचेस हैं, सब उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के 1 वचन में छिपी हैं। जेनेसिस 1:1 के 7 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 7। पहला शब्द है, अब मुझे पकड़ने में प्रॉब्लम होती है, देखिए ये है, पहला शब्द है बेरशित बारा एलोहिम एथ एथ हशमाइम वा एथ हा अरेट। 7 अक्षर हैं ये। बेरशित बिगिनिंग, शुरुआत में, इन द बिगिनिंग। 12 केवल परमेश्वर कर सकता है। 12 का मतलब है क्रिएट किया, बनाया। जो 12 वर्ड है बहुत पावरफुल वर्ड है। इंसान 12 नहीं कर सकता। इंसान भी बहुत कुछ बनाता है। इंसान ने एयरक्राफ्ट बनाए हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बनाई हैं, शिप्स बनाए हैं, मशीनरी बहुत बड़ी बड़ी बनाई है। विज्ञान ने बहुत सारी चीज़ों का अनुसंधान किया, खोज की है, लेकिन मनुष्य 12 नहीं कर सकता। 12 आपको मालूम कैसे किया जाता है? 12 जो हिब्रू वर्ड है, 12 का मतलब है टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप केवल मुंह से बोल के बनाएंगे जो बनाएंगे। मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। अगर मनुष्य ने जहाज बनाया तो रॉ मटेरियल से बनाया। रॉ मटेरियल पहले परमेश्वर ने सृष्टि में बना रखा है।
अगर किसी ने चेयर बनाई तो वो रॉ मटेरियल जो एग्जिस्ट कर रहा है उससे बनाई। सब कुछ पहले जो बनाया गया उससे सब कुछ क्रिएट किया गया। ओनली गॉड कैन डू 12, मैन कैन नॉट डू 12। हालेलुया। तो खैर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो है बेरशीत, इन द बिगिनिंग, बेरशीत 12 एलोहीम, बेरशीत 12 एलोहीम एत हशमायम वाअत हाअरेट्स, दैट्स जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1। तो ये देखिए, बेरशीत को नंबर 1, 12 नंबर 2, एलोहीम नंबर 3, एत नंबर 4 और नंबर 5 है बेरशीत 12 एत, बेरशीत 12 एलोहीम एत हशमायम, हशमायम वाएत हारेट्स। हालेलुया। बेरशीत का मतलब होता है इन द बिगिनिंग, 12 का मतलब बनाना। ये बनाना अलौकिक है, ये इंसान नहीं बना सकता। टू क्रिएट विद योर वर्ड्स, टू क्रिएट विदाउट एनी एग्जिस्टिंग मटीरियल। कोई रॉ मटीरियल नहीं है आपके पास, आप सब कुछ बना रहे हो बिना किसी चीज के। ये काम केवल यीशु मसीह कर सकता है। बेरशीत 12 एलोहीम, एलोहीम परमेश्वर, एत अलफ ताब, ये अलफ ताब है, अलफ ताब, मैं बताऊंगा इसका भेद आपको। अलफ ताब एत हशमाइम, हशमाइम होता है स्वर्ग, वायत, ये अलफ ताब के साथ वाव लग गया, और ये हाअरेट्स, हाअरेट्स का मतलब पृथ्वी। तो अब सुने ध्यान से, ये जो चौथा वर्ड है बेरशीत 12 एलोहीम एत, एत है अलफ ताब। पूरी बाइबल के अंदर अगर आप पढ़ेंगे बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट पूरा, पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में 10,000 टाइम्स ये वर्ड आता है अलफ ताब। अलफ हिब्रू का पहला वर्ड है। अलफ इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ हिब्रू एंड ताब इज द लास्ट वर्ड ऑफ हिब्रू। In the entire Old Testament and 39 books, you find this word repeatedly coming. Et, Aleph Tab, Aleph Tab, Aleph Tab. It comes exactly 10,000 times. लेकिन आपको मालूम, एक भी बार इसे जूइश रब्बियों ने, यहूदी रब्बियों ने, मसीहानिक जूज ने जो मसीह में आते हैं यहूदियों में से, या ग्रीक स्कॉलर, हिब्रू स्कॉलर, लैटिन स्कॉलर, किसी ने भी इसको ट्रांसलेट नहीं किया। ये पूरी बाइबल में अनट्रांसलेटेड है और ये साइलेंट है। बेरशीत 12 एलोहीम एत अलफ ताब। आपको मालूम अलफ ताब कौन है? वो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, आई एम दी अल्फा एंड दी ओमेगा। अल्फा ग्रीक भाषा का पहला शब्द है, ओमेगा ग्रीक भाषा का आखिरी शब्द है। लेकिन आप जानते हो कि यीशु मसीह ग्रीक नहीं बोलता था, यीशु मसीह अरामिक हिब्रू बोलता था। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने लिए? आई एम द अलफ एंड ताब, मैं अलफ और ताब हूँ। अलफ ताब कौन है? अलफ ताब है प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पे है चौथी शाखा पे, ध्यान रखिएगा, मैं आप इस पे बहुत ज़बरदस्त टीचिंग है। ये जो चौथी शाफ्ट है, शाखा, ब्रांच है, यहाँ पे आ रहा है अलफ ताब, अर्थात यीशु मसीह। तो हम कहेंगे इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग बेरशीत 12 एलोहीम, आदि में परमेश्वर अलफ ताब ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। हालेलुया। आदि में परमेश्वर अलफ ताब, यीशु मसीह ने पृथ्वी और आकाश की रचना की। हालेलुया। ये देखिए कितना अद्भुत है। ये अगर इधर से आप चलेंगे, बेरशीत 12 एलोहीम एत अलफ ताब, बेरशीत 12 एलोहीम एत अलफ ताब। अलफ ताब यहीं पे आएगा, चौथी शाफ्ट के ऊपर, बोथ वेज, दोनों तरफ अलफ ताब यहीं पे आएगा। अब देखिए, ये उत्पत्ति 1:1 है, जेनेसिस 1:1। इसके द्वारा आप पूरी बाइबल को डिकोड कर सकते हैं। पूरी बाइबल इसके अंदर ही छिपी हुई है। इसे हनूक की पुस्तक में कहा गया है, 7-fold टीचिंग दैट गॉड विल गिव इन द एंड डेज टू द राइचस। धर्मी लोगों के ऊपर इस भेद को अंत के दिनों में परमेश्वर यहोवा प्रकट करेगा। हनूक की पुस्तक नंबर 1 में यह लिखा हुआ है।
हालेलुया। ये रहस्य है, ये भेद परमेश्वर उन पे खोलेगा जो यहोवा के भय में जीवन गुजारते हैं, जो पवित्र और धर्मी जीवन जीते हैं, जो सकरे फाटक से प्रवेश करते हैं और जो तंग मार्ग पे चलते हैं, जो क्रूस को उठाते हैं, शरीर की वासनाओं को क्रूस पे प्रतिदिन चढ़ाते हैं और प्रभु के लिए जीते हैं। हालेलुया। ये अलफ्ताब है प्रभु यीशु मसीह। ये फोर्थ ब्रांच के ऊपर ये आता है। हालेलुया। आपको मालूम यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा है? इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। आपको मालूम क्या वर्ड यूज किया गया यहाँ पे? वचन परमेश्वर के साथ था। ग्रीक वर्ड है मोनोजीनास। मोनोजीनास, मोनो का मतलब होता है एक। जीन्स, यहोवा परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों के जीन एक हैं। यहोवा परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों का डीएनए एक है। यहोवा परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों की ज़ात एक है। यहोवा परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों का स्वरूप एक है। यहोवा परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों के अदृश्य गुण एक हैं। यहोवा परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों सनातनी पराक्रमी परमेश्वर हैं, दोनों अनक्रिएटेड हैं। हालेलुया। जीसस इज द इटर्नल सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, अनक्रिएटेड सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। मोनोजीनास, दोनों एक हैं, दोनों के जीन्स एक हैं। यीशु मसीह यहोवा के जीन्स, यहोवा के डीएनए, यहोवा के आरएनए से पैदा हुआ। मरियम की कोख में यूसुफ का डीएनए नहीं गया, मरियम की कोख में यहोवा परमेश्वर का डीएनए गया। हालेलुया। यही वर्ड है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। यही है अल्फा एंड ओमेगा, यही है अलफ्ताब जो यहाँ फोर्थ ब्रांच के ऊपर आता है। हालेलुया। आपको मालूम ये जो चौथी ये ब्रांच है, ये बड़ी ख़ास है। इसको हिब्रू में बोलते हैं शमाश। शमाश, ये जो मेन शाफ्ट है, फोर्थ वन, ये ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है कि बाकी 6 की 6 ब्रांचें इसके संग जुड़ी हुई हैं। ध्यान से देखिए, ये जो मेन शाफ्ट है इसके अंदर ऑलिव ऑयल जाता है और ये 6 के 6 को सप्लाई करता है। मेन यही है और इसका नाम है शमाश। आपको मालूम इसका नाम का मतलब क्या है? इसके नाम का मतलब है नौकर, सर्वेंट। ये जो ब्रांच है इसका नाम है सर्वेंट। ये अलफ्ताब है, यीशु मसीह है। और कौन है ये सर्वेंट है। ये नौकर है लेकिन ये पूरे के पूरे मनोरा को थाम के रखे हुए है। पूरे के पूरे मनोरा को ऑयल यही सप्लाई करता है। ये बुनियाद है, जड़ है। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, वो पूरे ब्रह्मांड को थाम के रखता है अपने मुंह के शब्द के द्वारा। ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में, और इस ब्रह्मांड का किसी को संपूर्ण ज्ञान नहीं है। नासा के पास 7 या 8% सौर मंडल का ज्ञान है, बाकी सब कुछ मनुष्य नहीं जानता। लेकिन यीशु मसीह इस पूरे ब्रह्मांड को अपने मुंह के शब्द से थाम के रखता है। इब्रानियों 1:3 में, कुलिस्सियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है, इन हिम ऑल थिंग्स कंसिस्ट टुगेदर। उसमें पूरा ब्रह्मांड ऐसे जुड़ के रहता है, वो थाम के रखता है पूरे ब्रह्मांड को, और पूरे ब्रह्मांड को वो चलाता है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपको मालूम, उत्पत्ति की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर जब सृष्टि की रचना करता है तो परमेश्वर सूर्य, चांद और सितारों को चौथे दिन बनाता है, 4th डे बनाता है। लेकिन रोशनी पहले ही है। परमेश्वर कहता है लेट देयर बी लाइट। तो ये रोशनी कौन सी है? उत्पत्ति की पुस्तक में 2 रोशनी हैं, एक है क्रिएटिव लाइट, एक है क्रिएटेड लाइट। एक क्रिएटिव लाइट है, ऐसी रोशनी जो ब्रह्मांड को उत्पन्न कर रही है, और एक ऐसी रोशनी जिसे यहोवा ने उत्पन्न किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 4 वचन से अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा, इन हिम वॉज द लाइफ। यीशु मसीह के विषय में लिखा है, यीशु मसीह में जीवन था। इन हिम वॉज द लाइफ। आपको मैंने बताया, नए नियम में प्रेरित पौलुस जीवन के लिए 2 शब्द इस्तेमाल करता है।
एक शब्द है बायोस, जिसे पतरस कहता है ये जो हमारा बाहरी तंबू है ये नाश हो रहा है। बायोस का मतलब है शारीरिक जीवन जो माँ की कोख में जन्म लेता है, पिता और माता के मिलाप से, वो जीवन है बायोस। ये वो शब्द है यूनानी भाषा में, कोई ने ग्रीक में, यहीं से अंग्रेजी का शब्द निकलता है बायोलॉजी, बायोलॉजिकल लाइफ, दैट इज कॉल्ड बायोस। प्रेरित पौलुस बायोस जीवन के विषय में बात करता है, लेकिन प्रेरित पौलुस एक ऐसे जीवन के विषय में बात करता है जो बहुत ऊंचा है। वो जीवन है जोए, ZOE, जोए, जोए, जोए लाइफ। ये वो जीवन है जो परमेश्वर जी रहा है। यहोवा परमेश्वर के अंदर जो जीवन है, यीशु मसीह के अंदर जो जीवन है, पवित्र आत्मा के अंदर जो अमोघ, अनंत, अविनाशी, अक्षय, अखंड जीवन है जो कभी समाप्त नहीं होगा, वो जीवन है जोए लाइफ। यहाँ पे लिखा है इन हिम वॉज द लाइफ। वो जो जीवन यीशु मसीह में है वो है जोए, बायोस नहीं है। और ये पिता से पाया उसने। पुत्र के अंदर जीवन है जैसे पिता के अंदर जीवन है, ताकि पुत्र जिसे चाहे जीवन दे। वो नया धर्म देने नहीं आया इस पृथ्वी पे, वो जोए लाइफ देने के लिए आया। और आगे क्या लिखा है, पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 4 वचन में क्या लिखा, आगे 6 तक पढ़ेंगे, लिखा है इन हिम वॉज द लाइफ एंड द लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मैन। उसमें जीवन था, जोए काइंड जीवन था, और वो मनुष्यों की ज्योति था वो जीवन। फॉस वर्ड है, फॉस ग्रीक वर्ड है फॉस। फॉस का मतलब लाइट, रोशनी, ल्यूमिनस, चमकदार रोशनी, ल्यूमिनस लाइट। आपने देखा ना, एक नाम है ल्यूमिनस एक कंपनी का, वो यहीं से लिया उन्होंने बाइबल में से। ल्यूमिनस वो लाइट है, किसकी? मनुष्य की। आपको मालूम मनुष्य के लिए यूहन्ना कौन सा शब्द इस्तेमाल करता है यहाँ पे? एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस ग्रीक वर्ड है एंथ्रोपोस। ये वही वर्ड है जहाँ से हमारा अंग्रेजी का शब्द निकलता है एंथ्रोपोलॉजी। मनुष्य के विज्ञान को, जेनेटिक साइंस को, मानव के विज्ञान को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। आपको मालूम एंथ्रोपोस का ग्रीक में मीनिंग क्या है? एंथ्रोपोस का मतलब है एक ऐसी रचना जो अंदर से खाली है, एक ऐसी रचना जिसके अंदर एक खला है, वैक्यूम है। हर मनुष्य, उसका धर्म, उसकी जाति, उसका रंग, उसकी भाषा, उसका देश, कोई भी क्यों ना हो, हर एक मनुष्य एंथ्रोपोस है, और हर एक मनुष्य अंदर से खाली है। एक खला है, एक वैक्यूम है मानव के अंदर, और अंधकार है उस वैक्यूम में, और उस अंधकार में चमकने वाली ज्योति है यीशु मसीह। ये ज्योति, जब वचन आता है ना, ऐसे ज्योति चमकती है। ग्रीक वर्ड है फोटोमसास, चमकने के लिए लिखा, ज्योति अंधेरे में चमकती है। उस चमकने के लिए जो ग्रीक वर्ड है वो है फोटोमसास। ये वो वर्ड है जहाँ से अंग्रेजी का शब्द निकलता है फोटोग्राफी। जैसे फोटो खींची जाती थी ना, ऐसे फ्लैश होती थी और इमेज अंदर आ जाती थी, ऐसे ही परमेश्वर का कलाम फ्लैश करता है। हालेलुया। आपको मालूम, परमेश्वर ने जब उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में मनुष्य के पाप को, परवर्जन को, डिप्रेविटी को, इनिक्विटी को देखा, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के दिल के विचार जवानी से ही गंदे हैं। और मैंने आपको बताया कि जायंट्स थे और ह्यूमन डीएनए को वो टेम्पर कर रहे थे, और पृथ्वी के ऊपर परवर्जन थी। तो परमेश्वर ने कहा मनुष्य का पृथ्वी पे जीवन 160 साल का होगा, 120। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि शायद 120 ईयर्स की लाइफ की प्रभु बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जब सालों की बात करता है तो परमेश्वर जुबली में बात करता है। परमेश्वर की ईयरली मेजरमेंट होती है जुबली में। एक जुबली होती है 50 साल की। परमेश्वर 120 जुबलियों की बात कर रहा है कि 120 जुबली इंसान को पृथ्वी के ऊपर मिलेंगे। जुबली के ऊपर मैंने आपको शिक्षा दी है, फिर किसी समय और गहरी शिक्षा जुबली पे हम लेंगे। 120 जुबलियाँ, 120 गुना 50, 6000 साल। ये 6000 साल है, ये यहाँ तक 6000 ईयर्स पृथ्वी पे मनुष्य को दिए गए हैं। ये 7वां जो दिन है, ये सबत है परमेश्वर की। ये सबत, 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक ध्यान से,
तो परमेश्वर ने सूर्य को कौन से दिन बनाया? चौथे दिन। हालेलुया। बेरशत बारा एलोहिम एत अलफ्ताब, ये चौथा है दिन, चौथा दिन। यहाँ पे है अलफ्ताब, यीशु मसीह। मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय के 2 वचन में लिखा है, पर तुम जो यहोवा के नाम से डरते हो, तुम्हारे लिए धार्मिकता का सूर्य उदय होगा, जिसकी किरणों में शिफा होगी। यीशु मसीह धार्मिकता का सूर्य है। यीशु मसीह सन ऑफ राइचियसनेस है, जिसकी किरणों में शिफा है। और लिखा है कि तुम बछड़ों की मानंद कूदोगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। परमेश्वर का पुत्र सन इज इक्वल टू सन, इज इक्वल टू लाइट, इज इक्वल टू सर्वेंट। ये रोशनी है, ये नौकर, और सूर्य है ये नौकर, और इसकी किरणों में शिफा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, आदम से लेके यहाँ तक ये यीशु मसीह आया यहाँ पे। ये 1000 साल है, 2000 साल है, 3000 साल है, 4000 साल है, 5000 साल है, 6000 साल है, और ये 7000 साल है, मिलेनियम। यीशु मसीह यहाँ पे आया 4000 ईयर्स। आदम के बाद यहाँ 4000 साल पूरे होते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह आता है 4000 साल में। यीशु मसीह आता है, उसका नाम है अलफ्ताब, अल्फ़ा और ओमेगा। और यहाँ पे वर्ड है, अब सुने ध्यान से, बेरशत बारा एलोहिम एत, ये जीसस क्राइस्ट है। हशमायम, हशमायम स्वर्ग, स्वर्ग का राज्य का प्रचार चल रहा है यहाँ पे। हालेलुया। और ये है वायत, वायत, वायत पता क्या है? वायत में वाव अलफ्ताब, वाव अलफ्ताब। अलफ्ताब जीसस है, लेकिन वाव जुड़ गया आगे। आपको मालूम वाव क्या चीज़ है? वाव है कील, नेल। यहाँ पे आता है यीशु मसीह पहली बार मरियम की कोख में, वो अलफ्ताब है, उसके कील का निशान नहीं है। अब फिर आ रहा है यहाँ पे यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए। 6000 साल जब कंप्लीट हो रहे हैं, वो अपनी दुल्हन को उठाने के लिए आ रहा है। लेकिन अब जब आ रहा है, तब उसका नाम है वायत, वाब अलफ्ताब, उसके कीलों के निशान हैं। अब उसकी देह में कीलों के निशान हैं। ये जो निशान है उसकी देह में, ये इटर्नल हैं। जकरिया नबी की पुस्तक 10 और 12 अध्याय में लिखा है, वो ये निशान यहूदियों को, इसराइलियों को दिखाएगा, और वो उससे पूछेंगे कि ये ज़ख़म तुझे कैसे मिले, तो वो कहेगा मेरे प्यार करने वालों ने मेरे घर में ये ज़ख़म मुझे दिए हैं। हालेलुया। अब जब वो आ रहा है, यहाँ पे फिर आ रहा है दुल्हन को लेने। उसके बाद 7वां दिन है झोंपड़ियों का पर्व, अर्थात 1000 साल का राज्य शुरू हो जाएगा। अब जब वो आ रहा है तो उसके कील का निशान है। हालेलुया। तो अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, उसका पढ़िए आप, उसका चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 12 एंड 13। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 12 और 13 वचन। यीशु मसीह कहाँ खड़ा दिखाई दे रहा है? अद्भुत यीशु मसीह है, जिसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, पीतल जैसे पाँव हैं। अद्भुत पारलौकिक जीसस, वो कहाँ खड़ा दिख रहा है? इसके बीच में घूम रहा है। ये है यीशु मसीह की चर्च, यीशु मसीह की कलीसिया। इसके अंदर यीशु मसीह घूम रहा है प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में। हालेलुया। और आपको मालूम, यीशु मसीह चिट्ठियां लिखवाता है। कितनी कलीसिया हैं? 7 कलीसिया। देखिए, एफेसस की कलीसिया, स्मरना की कलीसिया, एफेसस की, स्मरना की, परगमस की कलीसिया, थयाटीरा की कलीसिया, सार्दिस की कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया। 7 कलीसियाएँ हैं। ये कलीसियाओं की एज है इसके अंदर ही छिपी हुई। जेनेसिस 1:1 में ही है ये, बेरशत बारा एलोहिम एत हशमाइम वाहत हा अर्ट्स, इसी के अंदर छिपी हुई है सारी शिक्षा। और आपको मालूम, यीशु मसीह कहाँ पे है? चौथी ब्रांच पे है। चौथी चर्च कौन सी है? थयाटीरा की चर्च है। तो थयाटीरा की कलीसिया को क्या कहता है यीशु मसीह? प्रकाशित वाक्य 3:18 में यीशु मसीह कहता है, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की तरह हैं। वो तुझसे बात कर रहा है जिसकी आंखें आग की ज्वाला की तरह हैं।
आग की ज्वाला की तरह। मैंने आपको बताया ये जो होता है ना बोल यहाँ पे बनी, ये एलमंड की तरह होती है, ऐसे यूं। बादाम जो है इंसान की आँख की शक्ल का होता है, एलमंड शेप की। आपको मालूम एलमंड बादाम का क्या अभिप्राय है? यहाँ पे भी एलमंड बने हुए हैं मनोरा पे, और हारून की छड़, एक सूखी लकड़ी लाठी को रखा गया। इज़राइल के जो 12 पुरनिये थे वो हारून के विरुद्ध में खड़े हुए। वो सब लीडरशिप चाहते थे, हम लीडर बनेंगे। तो परमेश्वर के दास मूसा से प्रभु ने कहा कि इज़राइल के जितने पुरनिये हैं जो लीडरशिप लेना चाहते हैं, अगुवा बनना चाहते हैं, वो अपना स्टाफ लेकर आएँ जो लाठी होती है उनके हाथ में। और वो लाठियाँ यहोवा के हजूर में रख दी गईं। अगले दिन बाकी की लाठियाँ तो वैसे ही थी सूखी लकड़ियाँ, लेकिन हारून की सूखी लकड़ी को बादाम लग गए। बादाम की टहनियाँ, कोपलें फूट निकली और बादाम लग गए। प्रभु ने बताया सच्ची लीडरशिप कौन सी है। भाई और बहनों, आपको मालूम सच्चा अगुवा कौन होता है? सच्चा अगुवा वो होता है जिसे फल लगता है। हालेलुया। जिसके जीवन में फल हैं, परमेश्वर की ओर से लगाए गए, अपनी तरफ से बनाए गए नहीं, बनावटी दिखावटी नहीं, अपना प्रचार करके, अपनी पब्लिसिटी करके, अपनी हाइप क्रिएट करके, अपने पोस्टर चिपका के, अपने बड़े बड़े बैनर लगा के, वो नहीं। यहोवा की हजूरी में जिसकी लाठी को बादाम फल लगते हैं, वो होता है यहोवा का मुकर्रर किया गया अगवा। जब अगवाई के लिए झगड़ा हुआ तो यहोवा ने कहा मैं डिसाइड करूंगा अगवा कौन है। आपका अगवा कौन है ये परमेश्वर डिसाइड करेगा। और परमेश्वर कैसे डिसाइड करता है? फलों के द्वारा। वृक्ष अपने फल से पहचाना जाता है, वरदानों से नहीं, फल से, कि फल लग रहा है या नहीं लग रहा है। यीशु मसीह की आंख आग की तरह है। हालेलुया। ये परमेश्वर के पैटर्न्स हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। अब मेरे संग बड़े ध्यान से आप पढ़िएगा। कोई अगर बीच में टाइप करता जाए, प्रिंट करता जाए आयतें, तो बहुत बढ़िया होगा। अब मैं बहुत अद्भुत बातें आपको बताने जा रहा हूं। परमेश्वर के पैटर्न, परमेश्वर के जजमेंट के क्या पैटर्न है, न्याय के। तो सबसे पहले चलिए प्रकाशित वाक्य में चलिए जल्दी से प्लीज़। ये वर्सेस लिखते जाइए तो बहुत अच्छा होगा। जो बाद में देखेंगे उनके लिए नोट्स बनाने, अध्ययन करना कलाम का बहुत इजी हो जाएगा। तो प्लीज़ इन्हें टाइप करते जाइएगा। हालेलुया। अब देखिए आप रेवलेशन में चलिए मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर नंबर 8, और मैं उसके 2 वचन से आपको बताना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय के 2 वचन से। अब क्या कहता है प्रभु का दास यूहन्ना? एंड आई सॉ द 7 एंजल्स विच स्टूड बिफोर गॉड एंड टू देम वर गिवन 7 ट्रम्पेट। 7 तुरियां हैं। कितनी तुरियां हैं? कितनी तुरियां दी गई हैं? 7 तुरियां हैं, 7 ही मोहरे हैं और 7 ही कटोरे हैं। 7 7 7 7 कंप्लीट एंड परफेक्ट। तो पहली जजमेंट यहाँ पे क्या है? पहला जो जजमेंट पृथ्वी पे पोर आउट, आपको मालूम, आप ध्यान से देखिएगा, बाइबल में लिखा है 13 चैप्टर में है शायद वो, सॉरी 8 चैप्टर के शुरू में ही है। 8 चैप्टर के शुरू में पढ़ देता हूँ आपके लिए। When he had opened the 7th seal and there was silence in heaven about the space of half an hour। जब उसने 7वीं मोहर खोल दी, 7th मोहर, तो स्वर्ग खामोश हो गया आधे घंटे के लिए। और ये हाफ एन आवर हेवनली है, अर्थली नहीं है। और क्या हुआ? एंड आई सॉ 7 एंजल्स विच स्टूड बिफोर गॉड एंड टू देम वर गिवन 7 ट्रम्पेट्स। तो आगे इसके तीसरा वचन पढ़ना चाहता हूँ पहले मैं। एंड अनदर एंजल केम एंड स्टूड एट द ऑल्टर हैविंग अ गोल्डन सेंसर and there was given unto him much incense that he should offer it with the prayers of the saint upon the golden altar which was before the throne। एक एंजल आया, उसके वो परमेश्वर की जगवेदी के पास खड़ा हुआ, गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस के पास खड़ा हुआ, और उसके हाथ में एक सेंसर है, कटोरा है सोने का, और उसे बहुत सारी धूप दी गई है, इंसेंस। ये इंसेंस असल में प्रार्थना होती है। लोग धूप जलाते हैं ना, ऐसे उसका धुआं ऊपर को चढ़ता है, इसका मतलब प्रार्थना ऊपर जा रही है।
राजा दाऊद कहता है, मेरा हाथ उठाना और मेरा प्रार्थना करना बखूर की मानिंद तेरे सामने पहुँचे, धूप की तरह तेरे हजूर में आए परमेश्वर। तो लिखा है उसको इंसेंस दिया गया, और क्या दिया गया उसको? संग में दिया गया संतों की दुआएं। बाइबल बताती है 12 जो बुज़ुर्ग हैं उनके हाथ में कटोरे हैं। वो कटोरे किस चीज़ से भरे हैं? हमारी दुआओं से। आप जो दुआ करते हो यीशु मसीह के नाम में, वो स्वर्ग जाती है और वो प्राचीन उन्हें अपने कटोरों में इकट्ठा करते हैं। अब ये दुआ जो पृथ्वी पे उसके संतों ने की है, प्रार्थना, दुख भोग के, कष्ट भोग के, सच्ची जो दुआएं हैं, पवित्र दुआएं हैं, वो स्वर्ग पहुंची हैं। और एंजल को क्या किया गया है? धूप दी गई है और उसके संग उसने मिक्स कर दी हैं दुआएं। और लिखा है प्रेयर ऑफ द सेंट्स अपॉन द गोल्डन ऑल्टर विच वॉज बिफोर द थ्रोन। यहोवा के सिंहासन के आगे एक सोने की जगवेदी है, उसमें आग डाली गई है, उसमें कोले, बर्निंग कोल्स हैं उसके अंदर। तो ये दूत दुआओं को मिक्स करता है इंसेंस पे, और कहाँ डाल देता है? जगवेदी पे। क्यों हेवन, आपको मालूम खामोश क्यों है स्वर्ग? क्योंकि परमेश्वर संतों की दुआ सुन रहा है। ये भाइयों कट पॉइंट है, कट ऑफ पॉइंट है मैनकाइंड के लिए। परमेश्वर प्रार्थना सुन रहा है यहाँ पे, इसके बाद अनुग्रह ख़त्म, इसके बाद जजमेंट आ रही है ज़मीन पे। हालेलुया। परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का न्याय आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने संतों की दुआओं का जवाब देना शुरू कर दिया है। यहाँ पे लिखा है एंड द स्मोक ऑफ द इंसेंस विच केम विद द प्रेयर ऑफ द सेंट्स असेंडेड बिफोर गॉड आउट ऑफ द एंजल्स हैंड। वो धूप उठ के दुआएं किधर चली गई? यहोवा के सिंहासन की ओर चली गई। और 5वां वचन पढ़े, एंड द एंजल टुक द सेंसर एंड फिल्ड इट विद फायर। फिर एंजल ने वही कटोरा लिया सोने का और उसे आग से भरा, फिल्ड इट विद फायर ऑफ द ऑल्टर एंड कास्ट इट इनटू द अर्थ। और उस आग को कहाँ उंडेल दिया? ज़मीन पे। अब जजमेंट शुरू हो रही है, ख़तरनाक जजमेंट आ रही है, बहुत हाई लेवल की जजमेंट आ रही है, क्योंकि आग उंडेल दी गई है। एंड क्या लिखा है? दे वो वॉइसेस थंडरिंग एंड लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। पृथ्वी के ऊपर बहुत कुछ होने लग पड़ा है जब स्वर्ग में से ये कटोरा आग का ज़मीन के ऊपर उंडेल दिया गया। हालेलुया। तो पहली जो बवा है, जजमेंट है, वो रेवलेशन 8:7 में लिखी है। एंड फर्स्ट एंजल साउंडेड एंड देयर फॉलोड हेल फायर मिंगल्ड विद ब्लड। 3 चीज़ें आ गई। क्या क्या आ गया? हेल, गड़े पड़ने लगे, आग आ गई और ब्लड आ गया ज़मीन के ऊपर। उसके बाद दूसरी जजमेंट क्या है? वो रेवलेशन 8 वर्स नंबर 10 के अंदर लिखी हुई है। लिखा बर्निंग मीट्रियोइट आ रहे हैं नीचे। रेवलेशन 8 वर्स नंबर 10, एंड द थर्ड एंजल साउंडेड एंड देयर फेल अ ग्रेट स्टार फ्रॉम हेवन burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the river and upon the fountains of water. A meteoroid, burning meteoroid ज़मीन के ऊपर गिर रहा है। और तीसरी जो जजमेंट है वो क्या है? ए स्टार कॉल्ड वर्मवुड। रेवलेशन 8:11, प्रकाशित वाक्य 8:11 में लिखा है ए स्टार दैट इज कॉल्ड वर्मवुड, वो ज़मीन के ऊपर गिर रहा है। तीसरी। चौथी मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ, मैं 5वीं में चलता हूँ। 5वीं क्या है? 5वीं है स्टार फॉल्स फ्रॉम हेवन विद की टू द बॉटमलेस पिट। एक दूत गिरता है ऊपर से, स्वर्ग से। रेवलेशन चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 1 में पढ़ें। रेवलेशन 9:1, एक दूत ऊपर से गिराया जाता है जिसके हाथ में बॉटमलेस पिट की चाबी है। 5th और 6th कौन सी है? रेवलेशन चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 14। 4 एंजल्स खोल दिए जाते हैं, चारों दिशाओं में 4 एंजल्स बांधे हैं यहोवा परमेश्वर ने। 4 एंजल्स हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में, माइटी एंजल्स, उनको लूज कर देता है परमेश्वर। रेवलेशन 9:14 में। और 7वीं जजमेंट क्या है? 7वीं जजमेंट है रेवलेशन चैप्टर नंबर 10 एंड वर्स नंबर 7। रेवलेशन 10:7 यहाँ पे लिखा है बट इन द डेज ऑफ द वॉइस ऑफ द 7th एंजल, 7वां एंजल, व्हेन ही शैल बिगिन टू साउंड, जब वो बोलेगा, द मिस्ट्री ऑफ गॉड शुड बी फिनिश्ड, परमेश्वर की मिस्ट्री फिनिश हो जाएगी, एज ही हैथ डिक्लेयर्ड टू हिज सर्वेंट्स द प्रॉफिट। आवाज आएगी, इट इज फिनिश्ड। टेलियोसिस ग्रीक वर्ड है।
यीशु मसीह जब क्रूस पे लटका था तो उसने क्या कहा? इट इज़ फिनिश्ड, टेलियोसिस, कंप्लीटली कंप्लीट एंड परफेक्टली परफेक्ट। हालेलुया। ये 7 ईयर्स की इटर्निटी है इसके अंदर, 7 जजमेंट हैं, 1 2 3 5 6 7। अब मैं आपको 4th जजमेंट बताता हूँ, 4th कौन सी है, नंबर 4 जजमेंट। हालेलुया। ये है रेवलेशन 8:12 में, पढ़ें रेवलेशन 8:12, देखें रेवलेशन 8:12 में क्या लिखा है। एंड द फोर्थ एंजल साउंडेड and the third part of the sun was smitten and the third part of the moon and the third part of the star। चौथा नंबर किसका है? ये किसका है? चौथा दिन क्रिएशन का है, जब सूर्य बनाया गया। चौथा दिन है, ये जो 4th ब्रांच है ये है शमेश, सर्वेंट की, नौकर की। शमेश है खुदावंद यीशु मसीह। मैं सर्वेंटहुड के ऊपर आपको टीच कर रहा था 2 दिन से। ये सर्वेंट है जीसस क्राइस्ट, ये ब्रांच है शमेश, और ये 4th डे है जब सन बनाया गया। और मलाकी 4:2 में सन ऑफ राइचियसनेस एंड जीसस क्राइस्ट है। और जो 4th जजमेंट है ये सूर्य को स्माइट करती है, सूर्य काला पड़ जाता है। हालेलुया। अब मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ इसी पे से 7 कटोरे, जजमेंट के 7 कटोरे जो उंडेले जाएंगे, 7 प्याले। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में चलिए जल्दी से, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय। हालेलुया। ये भी यही हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कटोरे हैं। 4th कटोरे को मैं होल्ड करूंगा, बाकी 6 आपको बताऊंगा, फिर बाद में 4th कटोरे पे चलेंगे। सबसे पहला कटोरा क्या है जब उंडेला जाता है? लोगों को फोड़े निकल आते हैं, ऐसे फोड़े, ऐसे बॉयल निकलते हैं जिसकी ट्रीटमेंट नहीं है। आपको मालूम किन्हें निकलते हैं ये? पढ़ लीजिए रेवलेशन 16 वर्स नंबर 2। यहाँ पे लिखा है, एंड द फर्स्ट वेंट एंड पोर्ड आउट हिज वायल अपॉन द अर्थ एंड देयर फेल अ नॉइसम एंड ग्रीवियस सोर अपॉन मेन विच हैड टेकन द मार्क ऑफ द बीस्ट एंड अपॉन देम विच वर्शिप्ड हिज इमेज। जिन्होंने मार्क ऑफ द बीस्ट ले लिया है, शैतान की मोहर लगवा ली है हाथ में इधर, उनके फोड़े निकल रहे हैं। शायद ये कोई केमिकल रिएक्शन है, बहुत वियर्ड तरह का, क्योंकि वो जो मार्क ऑफ द बीस्ट है वो आपके डीएनए को चेंज कर देगा, रीसीक्वेंस कर देगा। उनके फोड़े निकलते हैं बहुत भयंकर। पहली जजमेंट है। दूसरी जजमेंट क्या है? रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स नंबर 3 में लिखा है, जब सेकंड एंजल वायल पोर करता है अपॉन द सी इट बिकेम लाइक ब्लड। समुंदर जो हैं वो खून में बदल जाते हैं, समुद्र खून में बदल जाते हैं। तीसरा जब कटोरा उंडेला जाता है, प्रकाशित वाक्य 16:4 में लिखा है, तीसरे कटोरे को उंडेले जाने से क्या होता है? सारे दरिया खून में बदल जाते हैं, रिवर्स जो हैं ब्लड के अंदर तब्दील हो जाते हैं। और मैं 4th को छोड़ के 5th पढ़ूंगा आपके लिए। 5वीं जजमेंट जब आती है कटोरे की, तो जानवरों के ऊपर डार्कनेस आ जाती है। 16 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 10 वचन पढ़ें जल्दी से। रेवलेशन 16:10। And the 5th angel poured out his vial upon the seat of the beast, and his kingdom was full of darkness, and they gnawed their tongue for pain। जानवरों के ऊपर जजमेंट आती है एनिमल किंगडम पे, वो बहुत कराते हैं दुख से, डार्कनेस आ जाती है। छठी जब वायल कटोरा उंडेला जाता है तो क्या होता है छठे कटोरे से? रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स नंबर 12, प्रकाशित वाक्य 16:12। एंड द 6th एंजल पोर्ड आउट द वायल अपॉन ग्रेट रिवर यूफ्रेटिस एंड द वाटर देयर ऑफ ड्राइड अप। जो यूफ्रेटिस रिवर है, फरात नदी है, मिस्र में जाती है, वो सूख जाती है। किससे? छठी जब जजमेंट आती है। 7th जजमेंट क्या है? रेवलेशन 16:17, प्रकाशित वाक्य 16:17। एंड द 7th एंजल poured out his vial into the air, and there came a great voice out of the temple of heaven, which temple from the throne, saying, It is finished। टेलियोसिस खत्म हो गया, जो यीशु मसीह ने क्रूस से कहा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 4th है, ये शमेश, ये सूर्य है, ये सर्वेंट है, नौकर है। ये देखिए यही सबको सब कुछ दे रहा है, नौकर की ह्यूमिलिटी में से सब कुछ मिल रहा है। ये पूरा आधारशिला है इसकी। हालेलुया। अब देखिए 4th जजमेंट क्या है? 4th वायल जजमेंट।
रेवलेशन 16 का 8 पढ़ें। एंड द फोर्थ एंजल poured आउट हिज वायल अपॉन द सन। ये क्या है फोर्थ? शमेश। शमेश यूग्रेटिक टेक्स्ट में, अकेडियन टेक्स्ट में और कैनानाइट टेक्स्ट, अगर उनकी कल्चर की आप स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा शमेश सूर्य देवता भी होता था उन लोगों का, जिसकी वो पूजा करते थे। लेकिन ये सर्वेंट है, नौकर है। तो यहाँ पे फिर जजमेंट किसके ऊपर आई है? सूर्य पे आई है। अपॉन द सन एंड पावर वॉज गिवन अन टू हिम टू स्कॉर्च मैन विद फायर। सूर्य लोगों को खा रहा है, ऐसे सूर्य की हीट, चमड़ी जैसे लोगों की ना, ऐसे लगेगा जैसे लोगों की बॉडी डिहाइड्रेट होगी कंप्लीटली, सब कुछ निचोड़ लिया उसने, लोगों को खा लिया। ऐसे सूर्य स्कॉर्च करेगा लोगों को। हालेलुया। फोर्थ जजमेंट है, क्योंकि ये फोर्थ डे है जिस दिन सूर्य बनाया गया। हालेलुया। समाप्त हुआ और मसीह का राज्य शुरू हुआ। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और अद्भुत बात जो इसके अंदर छिपी है। 7 पर्व परमेश्वर ने इसराइल को 7 पर्व मनाने के लिए दिए। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय में परमेश्वर ने उन पर्वों को बदला नहीं, कोई रेफरेंडम नहीं दिया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अब ये पर्व ख़त्म हो गए क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया, क्योंकि पवित्र आत्मा पंतेकुस्त के दिन आ गया, पर्व ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं कहा। वो पर्व आज भी चल रहे हैं, लेकिन कलीसिया ने उन्हें मनाना छोड़ा 3री सदी में। 1ली 2री सदी में कलीसिया मनाती थी पर्वों को, प्रेरित मनाते थे। मेरे संग कभी बात कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ ओरिजिनल टेक्स्ट से, हिब्रू, ग्रीक, लैटिन में से निकाल के दिखाता हूँ आपको ओरिजिनल टेक्स्ट, कैसे उसको करप्ट किया गया, बदलने की कोशिश की गई, कैसे इंग्लिश ट्रांसलेशन में इनकरेक्टली उन्हें ट्रांसलेट किया गया। प्रेरित मनाते थे पर्वों को, सभी पर्वों को मनाते थे। परमेश्वर ने वो पर्व अनंत काल के लिए दिए हैं। यहोवा परमेश्वर कहता है लेविटिकस, लेवी व्यवस्था 13 अध्याय के 2 वचन में, ये मेरे पर्व हैं। यहोवा परमेश्वर कहता है ये मेरी पवित्र सभाएं हैं, ये मेरी होली कन्वोकेशंस हैं। ये यहूदियों के पर्व नहीं हैं, ये यहोवा के पर्व हैं। और आपको मालूम, पर्व के लिए जो हिब्रू वर्ड है मोआडीम या मोएड, जिसका मतलब होता है साइन, जिसका मतलब होता है सिग्नल, जिसका मतलब होता है हार्बिंजर ऑफ द सीजन, ऋतु, जो सीजन के बदलाव को बताने वाला। आपको मालूम ये वर्ड पहले कहाँ यूज हुआ? इससे पहले जेनेसिस 1:14 में, उत्पत्ति 1:14 में, सूर्य को जब परमेश्वर ने बनाया, वचन में देखा है उसने बड़ी ज्योति को दिन पे राज करने के लिए बनाया, छोटी ज्योति चांद को रात पे राज करने के लिए बनाया, और सितारे बनाए उसने, सौरमंडल बनाया। और परमेश्वर ने कहा, 2 शब्द है वहाँ पे, ये चिन्ह होंगे, और लिखा है ये निशान होंगे। 2 वर्ड है, ओथ और मोआडीम। सूर्य और चांद, ये मोआडीम है। आपको मालूम यहूदियों के पर्व चांद के संग कनेक्ट हैं। मैंने अभी आपको बताया, पहले चांद पे, पहला चांद जब निकलता है, वो कब निकलता है उसे कोई नहीं जानता। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं उस घड़ी को, उस दिन को कोई नहीं जानता। तुरियों का पर्व वो पर्व है जब तुरियां फूकी जाती हैं और राजा आता है, उस घड़ी को कोई नहीं जानता। ये प्रभु इशारा कर रहे हैं अपने वचन में। हालेलुया। तो अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये फसह का पर्व है, पीशाक बोलते हैं इसको। ये है अनलेवन्ड ब्रेड, ये जिसे हम अखमीरी रोटी बोलते हैं, ये है फर्स्ट फ्रूट, पहला फल। यीशु मसीह मरा, फसह का मेमना, यीशु मसीह अखमीरी रोटी है हमारे लिए जिसे हम खाते हैं। यीशु मसीह पहला फल बना, मुर्दों में से जी उठा, और ये है पंतेकुस्त, पेंटाकोस्टा। यहाँ से यहाँ तक 50 दिन होते हैं। जब ये पर्व आता है, इसके बाद 50 दिन काउंट किए जाते हैं। उसे कहा जाता है काउंटिंग दी ओमर। 7 हफ्ते काउंट किए जाते हैं, 7 वीक्स, 7 सबत काउंट की जाती हैं, 7 × 7 49 डेज, और ये 50वां दिन होता है जिसे पेंटाकोस्टा कहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये पर्व पूरा कर दिया। वो फसह का मेमना है, वो अखमीरी रोटी है, वो पहला फल है, और पंतेकुस्त उसने पूरा कर दिया, वो वादा करके गया था। पंतेकुस्त के दिन होली स्पिरिट केम अपॉन 120 पीपल एंड द ग्लोरियस चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। एवरीथिंग इज हैप। दिस इज गॉड्स कैलेंडर, दिस इज गॉड्स क्लॉक, दिस इज हाउ गॉड वर्क्स इन द अर्थ।
God's calendar is not the Gregorian calendar or the Julian calendar that you have on your walls. That's Roman Catholic Church's calendar. That's not God's holy calendar. This is God's holy calendar. You must align your life with the calendar of God so that you may know the seasons, so that you may know the timing of God, so that you may be able to navigate your life correctly, properly in these dark and turbulent times. ये कैलेंडर पे लौटिए। ये गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर ये प्रभु के पर्व नहीं हैं, ये रोमन कैथोलिक चर्च ने इंसर्ट किए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम की सच्चाई को जानिए भाई और बहनों। ये कड़वी होती है सच्चाई थोड़ी, लेकिन इसे जानिए, अध्ययन कीजिए, रिसर्च कीजिए, आपको परमेश्वर ये सब बातें दिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर पर्वों पे काम कर रहा है। फसह के दिन यीशु मसीह मरा, वो फसह की रात थी। यीशु मसीह अखमीरी रोटी बना, उसने रोटी तोड़ी और कहा ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती। यीशु मसीह पहला फल बना। यीशु मसीह ने पंतेकुस्त के दिन पवित्र, तुरियों के पर्व दूल्हा आता है। तुरियों के पर्व का पता नहीं होता किस घड़ी शुरू होगा, ना घड़ी को जानता है मनुष्य ना दिन को। ये है जब कलीसिया उठाई जाएगी। उसके बाद है प्रायश्चित का पर्व, योम किपुर, जो भाई और बहनों आने वाला है। हम लोगों ने कौन सा पर्व मना लिया? ये पर्व, तुरियों का पर्व हमने सेलिब्रेट कर लिया। हमने 3 दिन उपवास रखा था। अब तुरियों के पर्व के बाद आएगा, तुरियों के पर्व से 10 दिन बाद आता है योम किपुर। ये 10 दिन हाई हॉलीडेज होते हैं। इसमें यहूदी लोग प्रार्थना करते हैं, वचन मनन करते हैं, अपना जीवन प्रभु के आगे रखते हैं, क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर स्वर्ग में पुस्तकें खोलता है। हालेलुया। ये रिपेंटेंस के डेज हैं, हम्बल करने के दिन हैं, परमेश्वर के सन्मुख पवित्र जीवन जीने के दिन हैं। इसके बाद 7 साल का सताव है, जिसे प्रायश्चित का पर्व कहा गया है, और उसके बाद है 1000 साल का मसीह का राज्य। हालेलुया। तो ये जो 7 पर्व हैं, हालेलुया, आपको मालूम, अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, परमेश्वर इस्राएल को कौन सी रात निकाल के लाया? फसह की रात। उन्होंने मेमना वध किया। प्रभु ने कहा इस मेमने को रोस्ट करके खाना, पूरा मेमना खा लेना, छोड़ना नहीं कुछ भी, क्योंकि जो मेमने का अंग खाया उससे उनके अंग चंगे हो गए, पूरी बॉडी चंगी होगी मेमने को खाने से। और उनमें से कोई बीमार नहीं हुआ, कोई कमज़ोर नहीं, किसी को हेडेक नहीं हुई, किसी को इन्फेक्शन नहीं हुआ, किसी को आई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी की बैक पेन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ किसी को 40 ईयर्स, क्योंकि वो मेमना खा के निकले। मेमना खाना, कड़वा साग पात खाना, अपनी अखमीरी रोटी खाना और अपनी कमर बांध के रखना। आधी रात यहोवा ने उन्हें छुड़ाया। वो मिस्र को लूट के निकले, सोना चांदी हीरे मोती लेके निकल गए। आपको मालूम कौन से दिन निकले? इस दिन, ये फसह का दिन है। अखमीरी रोटी उन्होंने बनाई है, खमीरा रोटी खाई, साग पात खाया। पहले फल का पर्व वो कब मनाते? जब वो जाके कनान देश के वारिस बनते। तो अगला पर्व था पेंटेकोस्त का पर्व। ये पर्व से ये पर्व 50वें दिन आता है। आपको मालूम वो सिनई पहाड़ पे कौन से दिन पहुंच गए? वो सिनई पहाड़ पे एग्जैक्ट 10 डेज के बाद पहुंच गए, 10 दिन। और यहोवा परमेश्वर का जलाल उतर आया। यहोवा परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पे बुला लिया। मूसा कितने दिन परमेश्वर के हजूर में रहा? 40 दिन। 10 और 40 कितने दिन हो गए? 50 दिन, 50 डेज। 50th डे को यहोवा ने अपनी व्यवस्था दी। मूसा 50वें दिन यहोवा की व्यवस्था को लेकर नीचे आया। ये पहला पेंटेकोस्त था। पहले पेंटेकोस्त के दिन यहोवा परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दी। किन्हें? इस्राएलियों को। हालेलुया। पहले पेंटेकोस्त के दिन। और आपको मालूम पहले पेंटेकोस्त के दिन क्या हुआ? उन्होंने बछड़ा बना लिया था, उसकी पूजा कर रहे थे। 3000 लोग मारे गए। आपको मालूम जूइश लोग क्या कहते हैं? यहोवा परमेश्वर उस पहाड़ पे उतरा और वो पहाड़ हवा में उड़ गया, ऐसे लेविटेट करने लगा, और इज़राइल उसके नीचे गया, हुपा के नीचे खड़ा हुआ, पहाड़ के हुपा के नीचे। और यहोवा परमेश्वर ने कतूबा किया, इज़राइल से शादी की, लेकिन वो मूर्ति पूजा करने लगे। 3000 लोगों को मारा गया पेंटेकोस्त के दिन, जिस दिन व्यवस्था दी गई। और आपको मालूम वही पेंटेकोस्त दोबारा आया। कब?
प्रेरितों के काम 2 अध्याय में। ये परब यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम को मत छोड़ना, काउंट कर लीजिए। यहाँ पे मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन 40 रात चेलों को दिखाई देता रहा। 10 दिन यीशु मसीह के चेले प्रार्थना करते रहे, 40 और 10 50। और प्रेरितों के काम एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ते हैं, जब पंतेकुस्त का दिन, व्हेन द डे ऑफ पेंटेकॉस्ट वाज फुली कम, दे वर इन वन अकॉर्ड, वन माइंड, इन वन प्लेस, ऑल ऑफ अ सडन रशिंग माइटी विंड केम। वर्लविंड जो मैंने आपको मैसेज दिया था, वावरोड़ा आया ऊपर से। वो यहोवा परमेश्वर के चैरियट होते हैं उसके अंदर, वर्लविंड के अंदर। ही केम एंड ही बैप्टाइज पीपल। और आपको मालूम कैसे बैप्टाइज किया उसने? आग की जीभें, वो आग है। मैंने आपको बताया ये थुआटीरा की कलीसिया को वो कहता है, मैं, मेरी आंखें आग की ज्वाला हैं। अग्नि, अग्नि का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा और अग्नि का बपतिस्मा यीशु मसीह देता है। आपको मालूम, जूइश लोग ये मानते हैं कि यहोवा परमेश्वर जब सिनै पहाड़ से बोला, 70 लैंग्वेजेस निकली, 70 लैंग्वेजेस में लोगों ने सुना, 70 ज़ुबानों में लोगों ने उस बात को सुना। और अगर आप पढ़ेंगे एक्सोडस, जिसे हम निर्गमन कहते हैं, कूच की किताब, 20 अध्याय का 18 वचन, आग की ज्वाला से वो पहाड़ धधक रहा था, अग्नि से। 70 लैंग्वेजेस में बोल आवाज़ आई वहाँ पे। और पंतेकुस्त के दिन 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 11 पढ़ें, 16 भाषाओं में जूइश लोग सुनते हैं। यहूदी डायस्पोरा, यहूदी लोग अलग अलग देशों में तितर बितर हो गए थे, 16 अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे वो, उन सबको अपनी अपनी लैंग्वेज में सुनाई दिया। ये सेकंड पेंटेकॉस्ट था। हालेलुया। परमेश्वर अपने कैलेंडर के मुआफिक काम कर रहा है, परमेश्वर अपनी घड़ी के मुआफिक काम कर रहा है। आपको परमेश्वर के कैलेंडर से और परमेश्वर की घड़ी से अलाइनमेंट करनी पड़ेगी, परमेश्वर के कलाम को समझने के लिए और परमेश्वर के कलाम को जानने के लिए। पंतेकुस्त की रोशनी जो है पवित्र आत्मा की रोशनी है। हालेलुया। इसमें रोशनी है और तेल है। तेल के बगैर रोशनी नहीं, तेल रोशनी को पैदा करता। प्रभु ने कहा था इसके अंदर सुबह भी तेल चेंज करना है। ये जो ब्रांच है ना बीच की, इसका नाम है शमेश, ये है नौकर, इसके अंदर तेल डाला जाता है सर्वेंट में। सर्वेंट से तेल होके सबकी तरफ जाता है। जो सर्वेंट है उसमें से ऑयल फ्लो करता है। परमेश्वर के राज्य में सर्वेंट लीडर हैं, लीडर लीडर नहीं है। आपकी सर्वेंटहुड आपको किंगशिप दिलाएगी, आपकी सर्वेंटहुड आपको यीशु मसीह के साथ सिंहासन पे बिठाएगी। जब यीशु मसीह के आगे आप खड़े होंगे, यीशु मसीह आपसे, अगर आपने वफादारी, 3 बातें यीशु मसीह कहता है। यीशु मसीह कहता है जो वफादार हो और जो जय पाए और जो फल लाए, 3 बातें होनी चाहिए। वफादार हो, जय पाए हम किस पे? अपने शरीर की वासनाओं पे, शैतान पे और संसार पे। 3 चीज़ों पे जय पाएँ, जयवंत जीवन हो। वफादार रहें, हर चीज़ में वफादार रहें और जयवंत हो और फल लेकर आएँ, तो वो हमें सिंहासन पे बिठाएगा। हालेलुया। और हम उसके संग सिंहासन पे बैठ के राज्य करेंगे सर्वेंटहुड के द्वारा। ये सबको सप्लाई कर रहा है तेल, शमेश। यहीं पे ये मेन चीज़ है सारी। आप दोनों तरफ से गिन लो, ये 4th नंबर पे आएगा, शमेश, नौकर। हालेलुया। ये देखिए, अब एक सेकंड होल्ड कीजिए, इसे ध्यान से देखें। ये 7000 ईयर्स है, ये 1000 साल है, ठीक है। ये देखेंगे आप 1000 ईयर। ये आप यहाँ पे एडम आया, यहाँ पे आया हनूक। हर 1000 साल के बाद आपको रोशनी दिखेगी। हनूक वो है जो उठा लिया गया है। हनूक कलीसिया की तस्वीर है जो रैप्चर होता है। हनूक के बाद है नू बचाया जाता है कश्ती में जाके। नू तस्वीर है यहूदियों की और लेफ्ट बिहाइंड चर्च की, जो बचेंगे लेकिन सताव में से निकल के। हनूक वो कलीसिया है जो सताव से पहले उठा ली जाती है, और नू वो कलीसिया और यहूदी लोग हैं जो 7 साल के सताव में से होके गुजरेंगे। तो एडम के बाद हनूक रोशनी है,
हनूक के बाद यहाँ पे इब्राहिम आ जाता है, इब्राहिम के बाद डेविड, और फिर ये देखिए हनूक, इब्राहिम, डेविड एंड जीसस। एक एक हज़ार साल के बाद रोशनी है, एक एक हज़ार साल के बाद लाइट है, परमेश्वर की लाइट। हालेलुया। तो अब देखें आप, ये जो है ये है फसा, ठीक है, ये है फसा के बाद अखमीरी रोटी, हाग माजा कहते हैं इसको, ये है पहला फल, ये है पंतेकुस्त, पंतेकुस्त, पंतेकुस्त रोशनी। हम कहाँ पे हैं इस समय? यहाँ पे हैं। हम इसकी इंतज़ारी कर रहे हैं तुरियों की, योम तिरुआ की, जब तुरी फूकी जाएगी दूल्हा हमें लेने आएगा। यहाँ पे हैं हम इस समय। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये इसके अंदर क्या आता है? तेल। आपको और मुझे तेल के उत्तराधिकारी बनाया गया है, खालिस ज्योति परमेश्वर की, उसका तेल अभिषेक का, और उसकी खालिस ज्योति हमारे द्वारा चमकनी चाहिए। और आपको मालूम, ये तेज, ये रोशनी, ये नूर और ये अभिषेक, ये मसा आपके ऊपर से तब बहेगा और आप दूसरों को सप्लाई करेंगे, बाकी की 6 ब्रांचेस को अभिषेक और रोशनी सप्लाई करेंगे। लेकिन कब? जब आप नौकर हैं, बॉन्ड स्लेव हैं। मैंने आपको बताया 6 साल के बाद बॉन्ड स्लेव आज़ाद हो जाता है। जब स्लेव आज़ाद होता है, पहले वो स्लेव होता है, जब से स्लेव आज़ाद हो जाता है, नौकर आज़ाद हो जाता है 6ठे साल, अब उसकी आज़ादी है। लेकिन वो अपनी आज़ादी को एनकैश करता है बंधुआ गुलाम बनने के लिए। जब तक वो आज़ाद नहीं होता तब तक वो बॉन्ड स्लेव बन ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको वो आज़ादी यीशु मसीह के संग संग चल के हासिल करनी है। यीशु मसीह की हजूरी में वो फ्रीडम, वो लिबर्टी हासिल करनी है, ताकि आप उसे विलफुली सरेंडर करें और बॉन्ड स्लेव बन सकें। हालेलुया। यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।